say that there is an opposite and inverse relationship between P and Q. Opposite relationship, inverse relationship between P and Q. P और Q के दरमियान में जो relationship है inverse relationship. And whenever we talk about the relationship is inverse, the relationship opposite. The relationship is opposite. So therefore, the opposite relationship would be explained with the help of the negative slope. Yes, if a line is moving from left to the right, downwards, that line explains an opposite and inverse relationship with two variables. We studied when we studied the graph using economics, using graph economics. अगर दो वेरिएबल के दरमियान में मनफी ताल्लुक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो therefore उस रिलेशनशिप पर नेगेटिव स्लोप से the line should move from the right downwards. And here this curve is generally called the demand. Demand curve is downward sloping. Demand curve is downward sloping. Demand curve is negatively slope. Why the demand curve is slope? The very simple reason, because there is an opposite relationship. There is an inverse relationship between P and Q, keeping remain constant. That's why the demand curve is negatively slope. You see, class. You see, अगर हम इस के ऊपर 3 पॉइंट कंसीडर कर लें, पॉइंट A, पॉइंट B and पॉइंट Q. If we consider 3 points along the curve, so therefore at point A the price is P1 है और इतना आप खा रहे हैं. B पर आ जाते हैं, प्राइस P1 से कम होकर P2 हो जाती है, लिहाजा आप खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं Q1 से. The graph itself explaining us an inverse relationship between P and Q. कि प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड एक्सपेंड हो जाएगा. तो डिमांड क्यों एक्सपेंड हो जाएगा? इसलिए कि प्राइस कम हो गई है. This is called demand expansion. This is what we call demand expansion. But the meaning of demand expansion nothing but demand increases due to a decrease in price. मेरी बात समझ में आ रही है? डिमांड का मतलब ये हुआ कि प्राइस कम हो गई है, लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है. अगर हम सी पर चले जाते हैं ऐसे कि प्राइस बढ़ गया है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? लोगों ने खाना कम कर दिया है, नजर आ रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड कम हो गया है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि डिमांड कम हो गया है. भाई डिमांड क्यों कम हो गया है? मतलब कि प्राइस बढ़ गई है. डिमांड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड एक्सपेंशन. सो देयरफॉर अगर एक लफ्ज बताना चाहे कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है क्या, इट्स एन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. डिमांड की प्राइस and vice versa. So therefore, other words we can explain the law, that is what an expansion and a contraction in demand is the law of demand. But we have the same demand curve. We have the same demand curve. You can see demand curve तो एक ही है. These are called demand points. Demand point A, demand point B, demand point. एक ही कर्व है और एक ही कर्व के ऊपर पॉइंट मूव कर रहा है. If the demand points move along the demand curve, the same demand curve means change in demand using price. And of course, you can see the variables. You consider the variables like that. Generally, होता क्या चीज है? हमें पता है कि we talk about that. एक चीज देखें. Demand, what is it that demand is the function of price. This is what a functional form of the law of demand that could explain the law of demand. But price, basic, but the linear demand equation. I'm talking about the linear demand equation. So linear demand equation होता है Q is equal to A minus B into P. This is
is what a linear demand equation. Q is equal to A minus B into P. Linear demand equation. अरे पता क्या होता है? आपको एक छोटी सी बात बताओ, फिर मैं इसको विकास में कभी नहीं बनाऊंगा। हमारे अंदर मसला क्या होता है? इसने बचपन से दो चीज पढ़ा है, एक्स और वाई। जो टीचर आए होते हैं हमें एक्स और वाई पढ़ा है। हमारे तो परेशानी होती है इक्वेशन में अगर एक्स और वाई से हट के ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज होता है तो हम घबरा जाते हैं। ये कौन सी बना रहा है? ये तो कुछ नहीं होता है। You see, यहाँ पे y में ठीक होता है ना, y में मैंने क्या लिया हुआ p लिया हुआ है, x में क्या लिया हुआ है q लिया हुआ है। बिल्कुल जरा और सुनिएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे x इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू वाई, क्योंकि p जो है लिखा हुआ है यहाँ पे y की जगह पे, आपको याद है वो p है y। तो हमने क्या किया, p की जगह y वेरिएबल बता रहा हूँ तो y आ गया, ठीक है। a और b क्या है मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। a कोई नंबर है, b भी कोई नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 100 माइनस 20 इंटू वाई एक नंबर है और b भी एक नंबर है। तो इसको हम अरेंज कर दें तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 100 लीनियर इक्वेशन। So therefore this is for the linear demand equation. ऐसा करेंगे linear demand equation। x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी, y की वैल्यू रखते जाएं, x की वैल्यू निकलती। ये होता है ना? Put extract another value and put all the values on the line, you will find an equation. And the line, you can just extract the line. The line is called local. You know, the graphical representation of any एक बात गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, उसमें वैल्यू रखते जाएं, दूसरी वैल्यू निकालते जाएं, तीन चार पेयर निकल जाए, उसको प्लॉट कर दें, एक लाइन बन जाता है। इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वेशन इज कॉल्ड। So it's nothing, it's a simple linear equation. Listen me very carefully. Q demand is the Again, demand is the function. Demand depends on price. कितना खाएंगे कितना प्राइस होगा, प्राइस बताएगा कि मैं कितना खाऊंगा, कितना खाएंगे। यानी कि आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है कि प्राइस क्या है। 2 रुपए का है, 10 रुपए जेब में 5 खा लेंगे। 10 रुपए का एक है, जेब में 10 रुपए, तो दैट बेस्ड ऑन योर इनकम एंड प्राइस इज बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो डिमांड डिपेंडेंट है। तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 चीजें हैं। पहली चीज तो हो गई डिमांड, दूसरी चीज हो गई प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी तीन चीजें इनको देख लेते हैं। ए दिस इज फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए को हम कहते हैं ये है intercept B is the slope parameter, just slope is the slope parameter, yes slope parameter। A is intercept, B is the slope parameter, Q is the dependent variable, P is an independent variable। Oh, then therefore what do you mean by this sign? The negative sign. Negative sign of the sign of the slope parameter. Slope parameter का जो sign है, negative sign है। ये parameter का जो sign है, this is very important. इसकी तो इतनी importance है बल्कि पूरा decision हम इस sign को कर लेते हैं। Yes, ये जो negative sign है slope parameter का, that explain the relationship between the independent variable। कि dependent और independent variable के दरमियान में कैसा ताल्लुक है। If the sign is that shows an opposite, the negative, inverse relationship between. We already talked about Q and P having opposite relationship. So therefore, this negative sign, the sign of the slope parameter, explains the relationship Q and P. The relationship
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नॉट इग्नोर द साइन, इग्नोर द साइन आपने कहानी को चलिए है। So my dear, you see, let's consider one thing more. Slope parameter की importance देखिए और intercept की importance देखिए। मैं बताऊंगा slope parameter जो है ना, ये भी b है जो कि n वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों q is equal to 55p, q dependent variable, p independent variable, r 50 is intercept, 5 is ये है क्या, अभी मैं बताता हूँ ये है। देखिए जनरली जो इंटरसेप्ट है ना, पहले इसको देखें 50 जनरलाइज से a लिख दिया, आप मुझे क्या देखो b कर दे, तो c कर दे, तो d कर दे, आपकी मर्जी। एक हार्ड क्लास में देखे सर ने a भी लिखा था, हम भी a भी लिखते हैं, अल्फा बीटा लिख दिया, अल्फा ये बीटा ये गामा है आप। But there should be an intercept, there should be a slope parameter, there should be a dependent, independent variable, and so on. So, form an equation. एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन की कितनी इंपॉर्टेंस आप बता दो। एक साधारण सी इक्वेशन, पता होता है कितनी है। 50 की वजह पावर हो जाए तो क्या काम बता देगी, 5 की वजह 4 हो जाए तो दुनिया भी कर सकती है। ये जो 50 है, थोड़ी देर के लिए आपको समझा रहा था, ये a 50 आपको मर्जी जितना है। अगर मैं b q किसके बराबर हो जाएगा, अगर प्राइस कितनी होगी 50, यानी कि व्हाटएवर अवेलेबल, अभी 50 अवेलेबल। अगर किसी चीज की प्राइस हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं जनरली एग्जांपल दे देता हूँ, ये मोबाइल मेरे पास होता है तो मोबाइल अभी ये मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये 5,000 है फॉर एग्जाम्पल। ये नो आर्गुमेंट प्लीज, नो आर्गुमेंट, जस्ट लिसन। ये मोबाइल मार्केट में दिखाने कंज्यूमर मोबाइल का, ठीक है, दुकान से मार्केट है, पूरी मार्केट है 50 मोबाइल आएगा, स्पीकर लिख दिया 50, कितने का मार्केट कितने का आप लोग कितने का एक ही मोबाइल बचेगा मेरे पास, नो अवेलेबल होगा, यू विल कंज्यूम ऑल, लेकिन हाथ जाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे। मोबाइल नहीं छोड़ रहा है सर, एक से ज्यादा लेके। इफ द प्राइस इज जीरो, यू विल कंज्यूम ऑल व्हाटएवर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाटएवर अवेलेबल इन द मार्केट। अवेलेबल इन द मार्केट इज 50. A is the maximum quantity of services available in the market. Got it? Maximum quantity of goods and services available in the market is A. Here is 50. How much goods is available in the market? 50. How much mobile is available in the market is 50. And of course, if the price is zero, you will demand. Are you getting me? Yeah. So therefore, dependent sign A is concerned. Now let's talk about B. Here in example consider B is 5. Don't worry, as long as you are in my class, yes, you can move outside. No matter if something wrong, so go out of class and say something to. Even then, you can bring the food for you. If you feel there's something wrong with you and that you have to take it, that's it. So therefore, you're allowed. But don't disturb them. No, don't disturb them. मेरे को सारी बात होता है, हमें समय दर्द होता है, हमारा भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए। Well, you see this actually the slope coefficient, slope parameter, the coefficient of independent variable.
ये क्या है भाई, ये जो स्लोप पैरामीटर है ना, इसको हम जनरली स्लोप पैरामीटर करें, दैट इज b, दैट इज 5 इन दिस एग्जांपल, जनरली b। अगर इस हमने 5 लिखा तो 5 होगा नहीं, अगर मैं 10 कर दूं तो b 10 हो जाएगा, 1 कर देता हूं तो b 1 हो जाएगा। तो देयर जनरली we say b, here in this example is 5। ये b क्या है, that depicts the slope parameter depicts the consumer behavior। आप देख लो आपके कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये मार्केट को हिला के रख देता है कंज्यूमर, ये जो स्लो पैरामीटर है, ये बहुत खतरनाक चीज है, समझिए कि इंजेक्शन है जहर का। अब स्लो पैरामीटर दैट डिपेक्ट्स द कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब है इट शोज दैट इफ प्राइस चेंजेस बाय 1 यूनिट द डिमांड इन द मार्केट बाय 5 यूनिट। अगर प्राइस 1 यूनिट से चेंज होगा तो डिमांड कितने यूनिट से चेंज होगा, मतलब डिमांड 5 यूनिट से, मतलब कंज्यूमर 5 यूनिट से डिमांड को चेंज कर देगा। देखिए आपने लिखिएगा, आप देखिए Q इज इक्वल टू, अगर P की जगह पे 0 रख दिया तो Q कितना हो गया, कब हुआ जब P 0 था, अब P की जगह कर दिया, P 1 कर दिया तो Q कितना हो गया। You see, as price increased by 1 unit, the demand changed by 5 units। कंज्यूमर ने ओवरऑल मार्केट में 5 यूनिट, किसी प्राइस 2 कर दिया, then as price again increased by 1 unit, the demand changed by 5 units। So how consumer respond in the market due to change the price by 1 unit? Then explain the help of this slope parameter कि किस तरह से कंज्यूमर मार्केट में रिस्पॉन्ड करता है। अगर ये 2 होता, मतलब अगर प्राइस 1 यूनिट से चेंज आएगा तो डिमांड 2 यूनिट से मार्केट में चेंज होगा। अगर ये जनाब 1 होगा तो प्राइस 1 यूनिट से चेंज होगा, डिमांड 1 यूनिट से चेंज होगा। अगर ये हाफ होगा तो प्राइस 1 यूनिट से चेंज होगा, डिमांड हाफ यूनिट से चेंज होगा। So this figure depicts the consumer behavior, how consumer respond in the market to change in price by 1 unit. So therefore, the equation, this is what interpretation देते हैं आप, जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में, इंटरप्रिटेशन देके जो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ लीनियर की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी इस लेवल पे मैं मैनेजर इकोनॉमिक्स को पढ़ाता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, क्यूबिकल फंक्शन बन जाए तो उसका कैसा होगा, उसका भी अलग डिमांड है, उसका भी अलग बिहेवियर है। Whatever we study, जो मैथ पढ़ रहे होते हैं ना, बड़ी एप्लीकेशन है। मुझे अभी से मैंने बिजनेस में पढ़ाया था, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया वेन डायग्राम, स्टार्ट मैंने वेन डायग्राम से किया, जो आप लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, जनाब अगर ये जनाब ये हो गया, ये है, ये बी है, ये वाला आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, वो साइन इंटरसेक्शन आ गया, इसका क्या करोगे, मेरा सवाल है, इस इंटरसेक्शन का क्या करोगे याकूब, आकिब क्या करोगे, अबे क्या करोगे, अबे इसका क्या बोलोगे, क्या करोगे, इसको लेके कहाँ माला बना लोगे, इसका वेरी बिग क्वेश्चन। You know, put value of x, you can determine the value of y. You know the common things are the intersection between these two types of observation। ये मजदूरी ना डेटा को दर भी भैया x पे डाली y की होगी, x पे डाली y की होगी, but instead if he knows nothing, this is for the nonsense thing, useless, he knows nothing about what you are doing, but he knows nothing of it। I know that is what the x is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2x, I know quadratic equation, x plus b plus c is equal to 0, it's a generalized quantification। How to determine the value of x? यही है ना, minus b plus minus b square minus 4ac, I know why the function is like this, do you think why it is कहाँ से आएंगे, अंडर रूट माइनस वन आ गया, फंस गए, आयोटा आ गया, फंस गए, ये आयोटा पॉसिबल है, आयोटा आ रहा, सबको पता है, इंटर के वैसे पढ़ रहे, आयोटा आ गया है पता। अगर ये आयोटा आ जाए तो किसी फंक्शन को जब एक्सप्लोर कर रहे हो आप, आयोटा आ गया, अब इक्वेशन क्या होगी, कंपनी छोड़े भाग जाओगे, बिल्डिंग तोड़ दोगे, जहाज को आग लगा क्या करोगे, असर एक्सपेक्ट
है, मतलब एक ही मुझे इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं। लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशनशिप दैट्स ऑल में आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम डिमांड को समझने की इंटरप्रिटेशन करनी है, एक फंक्शन की इंटरप्रिटेशन करनी है। यहाँ से मैंने आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, मैनेजर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको कि चले जब इलास्टिक से भी पढ़ाएंगे तो बॉटम अप देखेंगे, लेकिन इलास्टिक समझने की जगह आप आप ये नहीं पूछेंगे इसके पास बॉडी नहीं है अगर एक्सप्लोर करोगी और कंज्यूमर नीडेड इक्वल होगा तो क्या डिवाइड जीरो जीरो इक्वल होगी, मतलब ये बात ये 50 अगर इक्वल हो जाता है सर क्यों क्या 50 और 50 हाँ नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर ये कोएफिशिएंट में तब्दीली आ जाती है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अब बहुत ही जबरदस्त सवाल किया बच्चे ने कि Q इज इक्वल टू, बिल्कुल सही सवाल, 50 माइनस फॉर एग्जांपल 51 इंटू B। ये कह रहा है कि अगर 1 यूनिट से प्राइस में तब्दीली होगी तो तब्दीली 51 यूनिट आएगी। जब डिमांड में तब्दीली 51 यूनिट आएगी तो डिमांड के साथ साथ एक चीज होती है मार्केट में सप्लाई। होता है कि ऐसी कंडीशन में डिमांड जो है सप्लाई से बढ़ जाए। सप्लाई कितना है 50। हो सकता है कि डिमांड सप्लाई से बढ़ जाए, सप्लाई से बढ़ने का उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे होने लगेगा और प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, जो आपके रेंज से बाहर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर कम आने लगेगा। You got the answer. You got the answer. Very good question. I like it. तो चाहता हूँ कि कोई मुझे फंसाए, मैं परेशान हो जाऊँ। The question is, आपको कौन फंसाएगा? नहीं, लड़की थोड़ी है सर। ये देखा आगे ना पंखा है। और सर मत बात करिए, शायद इसका मतलब यूनिवर्सिटी में एक कंडीशन है बेदारी के बेटे नहीं होते सर, वो भी इतना नहीं करता। सच तो ये है कि तुम हूरों का चाहने वाला ही नहीं, सच तो ये है कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तुम तो मौजूद है पर मुद्दा ही नहीं। वो कुछ नहीं है सर, वो आखिरत में खुदा ने बहुत कुछ रहा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ही बहुत कुछ है। मेरे एक उस्ताद थे, ईशा की नमाज होती है, इमाम से बहुत क्या करता था इस्लामिक पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं डिबेट कॉम्पिटिशन तो मैं करता था, तो मुझे सुंदर सा है, बात होती है, अपने ऊपर ये क्या कर रहे हो, मरने वालों पे इतना कुछ कर रहे हैं, मरने वालों पे कुछ सजा बताने वाली अंधेरे में रहकर खुदकुशी करने से अच्छा है कि मरने वालों पे मर जाए। Well, again, what I said, Q is the function of price, opposite relationship between Q and C. Q is equal to A minus B into C, and then I am giving example, Q is equal to C plus 5.
we increase the price, the demand will increase by the value of supply. It shows that inverse relationship. नजर आ रहा था कि 0 पे 1 पे 45 से 2 पे 40 से as price increases, demand decreases. That shows an inverse relationship between these. ये फंक्शन है भाई, simple linear equation, simple linear demand equation. Well, when we talk about the generalized demand function. So therefore, the generalized demand function. You know, I talked about yesterday in the last class, that is quantity demand is function of price. क्या किया था? Function of the money income the consumer, function of price of related goods, function of expected future price, is it function of number of consumers, function of days and so on. P आ गया as population. P price of the commodity itself. उसी चीज की price. M money consumers money. P are price of related goods. वो related goods, जब आप related goods की बात करें तो related goods दो तरह का होगा. वो related goods आपस में एक दूसरे का substitutes होगा या वो related goods होंगे आपस में complement. It's the generalized demand function. With the help of the generalized demand function, we will discover the generalized relation. And then we start again talking about अच्छा मार्केट में जो तब्दीली है और चाल बच रहा है वो कैसे हो रहा है वो हम इंटरप्रेट करेंगे इंटरप्रिटेशन देखेंगे and I hope so you will enjoy price money income price of related goods the related goods could be a substitute or the complement for each other the expected future price उसी गुड्स की आज क्या है कल क्या होगा ठीक है expected future price and buyers consumers population T the taste of the consumer taste could be positive or that could be negative. What about the money income? So money income पे aspects हम दो बातें करते हैं ऐसा होगा आपकी इनकम बढ़ गई आप ज्यादा खाओगे ज्यादा लेकिन ये भी तो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ गई आप कम खाओ नहीं दाल खा रहे थे दाल को छोड़ के 2 रोटी खाने लगेंगे एक वक्त में 2 साल हुआ इनकम बढ़ी गोश्त खाना शुरू कर दिया इनकम दाल खाना कम एक वक्त में तो बिहेवियर हो रहा होगा ये मुमकिन है आप आधा पेट खा रहे थे इनकम बढ़ी रोटी खा रहे थे इनकम बढ़ गई 2 रोटी खाने लगे कंजम्पशन किसकी बढ़ गई So as your income increases, you will increase the consumption of one good. At the same time, you may reduce the consumption of other goods. Is it not? What happens? Maybe it may not be. It may happen with the someone. It may happen with the other one. Both the things may happen with. पता है? Increase in income, increase consumption. अगर आपके इनकम के बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है. तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कंजम्पशन मतलब डिमांड. अगर आपके इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, आपके इनकम के बढ़ने से डिमांड. अगर आपके इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई है, तो ऐसे गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स. If the demand for a good increases due to an increase in the money income of the consumer. Okay, probably, if the demand for a good increases due to increase in the money income of the consumer, the cost drops. इसकी बड़ी इंटरप्रिटेशन है. इसके भी आगे क्लासेस पढ़ेंगे, अभी नहीं. इसमें यूज करेंगे.
अरे साइन याद नहीं आता, ये हो याद रखो, डिमांड इंक्रीज हो रही, नो नो, द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीज इज, मैं रट्टा हुआ डेफिनेशन से पूछूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्या कहते हैं। If the demand for a good increase due to increase in the money income of the consumer, the goods are called normal goods. और आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है, the goods are inferior, घटिया जिसे कहते हैं। आप पहले वही चीज जिसके लिए तड़पते थे आप उसको खा के अपना क्या खिला दिया। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे नखरे बढ़ते हैं, होता है ये। तंदूर में लाइन लगाना खड़े होते तब पूछते हैं तंदूर क्या चीज है, कोई बतलाएंगे हम बतलाएंगे। वेल therefore no don't put your cat बच्चों मैं देख रहा हूँ तुम्हें आके रखते हो वो तो सुंदर है, वो तो मैंने बताया आपको, वो तो उस पर अमल कर रहे तो मजाक उड़ाने वाला खुद मजाक को सिखा रहे, मजाक ही उड़ा रहा है। अरे आप उसको देख पाए मैंने चाहिए में पढ़ा था, दूसरा बनाया था इधर के आप लोग देता है आपको होता है एक्सेल जो होता है दूसरी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, इसमें भी इक्वेशन आपने बताइए ग्राफ बना के अपना डेटा आप सेव कर सकते हो, आप कर सकते हैं, मैं प्रोग्रामिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, प्राइस की और एक क्वांटिटी इसके अंदर आप भी करते हैं, आप नहीं दूंगा एक तो मुझे भटका होगा वो मैं पढ़ाना शुरू करूँ एक्स है और वाई इससे चढ़ा नहीं एक्स एंड वाई, ठीक है एक्स एंड वाई वहाँ के फॉर एग्जाम्पल y is equal to ax plus b, एक लीनियर a है b है x है y है, q है b है a है b जीरो खाली ऊपर है। क्लास प्लीज, आपको बहुत सारे x पता है, आपको बहुत सारे y पता है, x है कितने y है m, एक से लेकर 50 तक, 50 x का डेटा गिवन है, 50 y का डेटा गिवन है। x क्या चीज है, लोगों की एज है, y क्या चीज है, लोगों की इनकम है, एज और इनकम में तरह नहीं करने। x 50 लोग हैं, हर एक आदमी का पहले आदमी का एज, उसकी इनकम, दूसरे आदमी का एज, उसकी इनकम, तीसरे का एज, उसकी इनकम, चौथे आदमी का एज, 50वें आदमी की एज। यहाँ पे एक वहाँ पे P and Q था, यहाँ पे x क्या चीज है, एज है, y क्या चीज है, इनकम। एज बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, हो सकता है एक्सपीरियंस चेक कर रहा है, मेरी एज बढ़ रही है इनकम हो सकता है कम हुई, वो इनएफिशिएंट दोनों नजर आएंगे इसके अंदर, कुछ लोगों की एज के साथ साथ इनकम ज्यादा है, कुछ लोगों की एज के साथ इनकम कम है, इनएफिशिएंट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, डेटा नंबर इज नथिंग, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा यार इस सबको x को जमा कर दो, तो समेशन ऑफ x हम करते हैं, इन सबको जमा कर दिया, समेशन ऑफ y पूरे x का जमा कर दिया, इतना नंबर हो गया x, जितने भी नंबर है सबको जमा कर दिया, समेशन कितने नंबर है, कितने लोग हैं 50, x का
मीन निकाल दें, एवरेज समेशन ऑफ x ओवर n। टोटल सम को 50 से डिवाइड कर दिया तो औसत उम्र पता चल गई एवरेज। तो इसको एक्सचेंज इक्वेशन को y को सम किया, y का एवरेज ले लिया समेशन ऑफ y ओवर n। एवरेज उम्र निकाला, जब एवरेज उम्र एवरेज इनकम आ गया इसको थोड़ा सा छेड़ दें। यहाँ से फिर हम y का मीन निकालेंगे, x का मीन निकालेंगे और एक ऐसा इक्वेशन डेवलप कर देंगे जिसके अंदर मीन वैल्यू गिवन होगी और एक नया मॉडल बन जाएगा। नाउ इसको बनाना चाहे तो पेयर ले लेके बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है हमारे पास क्या फार्मूला था कि y है ax प्लस b के लिए, ax प्लस b के, ठीक है। हमें यहाँ से a चाहिए, हमें यहाँ से b चाहिए। a का अलग फार्मूला है, a का फार्मूला होता है याद रखिएगा, और b का अगर b निकालेंगे तो b बराबर y बार माइनस a x बार के। लास्ट प्लीज b और a चाहिए, b का फार्मूला हो जाएगा y बार और x बार के। y बार ये निकाला यहाँ रख दिया, सुनिएगा जरा पढ़ते, x बार ये निकाला यहाँ रख दिया, चाहिए a का अलग फार्मूला टेक्निशियन, उसको निकाला यहाँ रख दिया, अब इसको निकाल ले तो b आ गया, b को यहाँ एक जनरलाइज फार्मूला हो गया, टेक्निक है। मुझे किससे तुम्हें बोला है कि सबसे ये सवाल मैं थोड़ी फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें इसलिए सिर्फ बताया कि मुझे पता थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी इस लगी अपनी क्लास को मैथ क्लास में उठा लीजिएगा, you got the proper knowledge। सर वो इतने मासूम है सर, पूछने में भी दिल दुखता है। नहीं आजकल क्रेडिट भी हमसे पढ़ा तो आएगा, सारे जाएंगे और जितने भी प्राइवेट पढ़ने वाले हैं उनके एक इन्विटेशन लगा दें ताकि जीवन की जो डिमांड है वो बढ़ जाए।